Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject BA Honours Political Science Semester 2nd, and your subject is Methods and Approaches in Comparative Politics Analysis. ठीक है, ये this chapter is your DSC discipline specific course, and if you are from DU Seoul, regular, NCWEB and any other university which has this subject in their course, then this video series is specifically for you. In this video series, we are going to explain every chapter in detail from exam oriented point of view. So every topic you read and understand in this video is totally exam based, and from these topics questions will be asked in your exam. So I hope you're ready, and since you know that video 1 of unit 1 video explanation has already been uploaded, so if you haven't watched that video, make sure to watch that video so that you do not miss anything. Okay, so unit 1 अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में. इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, एंड टुडे the unit we are going to cover is unit number 2, second unit, approaches to study comparative politics. We have already learned what is comparative politics. Comparative politics means when we structurally and according to the judiciary, when we compare the political structure of two countries on basis of some subjects, then we call it comparative politics. It started from European point of view, but along the way it has come across all the nations in the country and all the nations in the world actually. Okay, so today we are going to discuss lesson 1, which includes institutional approach, system approach and structural functional approach. Second is your perspectives on studying comparative politics, political culture perspective, and third is your neo institutionalism. तो हम इसका आउट कवर, जो इसकी सबकी डेफिनेशंस होती हैं एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये हम ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं. अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड यूनिट 1 देन यू मस्ट कंपल्सरी वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूनिट 2 आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा. यूनिट 1 के अंदर मैंने डिटेल के अंदर यूनिट 1 को आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यूनिट 1 से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2. Again, let us discuss what is comparative politics. Okay, so the comparative politics means the study and comparison of how different countries govern themselves, focusing on their political system, behaviors and institution. जब किसी भी दो कंट्रीज के कुछ कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस कर कर हम कंपेयर करते हैं उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को, देन इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. यूनिट 2 के चैप्टर 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही मेन ब्रांच है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम को कवर करता है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस ऑफ वेरियस कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज़ कैसे अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करती है, कैसे उनके इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, वहाँ का लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर समझते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नेंस ऑपरेट्स इन डिफरेंट नेशंस. अलग अलग नेशन के अंदर कैसे गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं. ठीक है, तो पहले ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, ये जो है बहुत ही लिमिटेड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता था गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर. यानी कि पहले ये बहुत ही छोटा था, ये सब्जेक्ट काफ़ी छोटा था, जो सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि लोगों की सेवा के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित रहता था.
ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, बट नाउ इट इज़ अ ब्रॉडर सब्जेक्ट which includes the nation, its people and whole as a country itself. आज ये सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, एज अ नेशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को. These include primarily the institutional approach, the system approach and structural functional approach, जिसको हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. Through these approaches, the study of political system began to be conducted in more scientific and comprehensive manner. इसे स्टार्टिंग में सिर्फ पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जाता था, बट धीरे धीरे इसे मोर साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर भी देखा जाने लग गया. कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पर मतलब है एज अ सब्जेक्ट, एज अ नेशनल सब्जेक्ट इसको देखा जाने लग गया पॉलिटिकल सिस्टम को. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है. देखो, इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक नेशन के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है उसको एग्जामिन किया जाता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट में कैसे काम हो रहा है, जुडिशरी कैसे काम करती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कैसे काम करती है. अब इसका मतलब क्या है, ये हमने अंग्रेजी में समझ तो लिया, बट इसका मतलब होता है कि वहाँ की जो पब्लिक सर्विसिंग एजेंसीज़ हैं, यानी कि वहाँ का पुलिस कैसे काम करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहाँ का जस्टिस कैसा है. ठीक है, जैसे इंस्टेंट डेथ दी जाती है कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स को. हीनियस का मतलब कुछ ऐसे बुरे क्राइम्स जो ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये हीनियस है, ये बहुत बुरा है, जिसके लिए डायरेक्ट डेथ दी जाती है. ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि ये तो है अमेरिका, वेट अ सेकेंड, ये है अमेरिका एंड ये है दुबई. ठीक है, तो जैसा हम सबको पता है दुबई का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है, यहाँ पर भी अमेरिका में भी हम पार्शियली कह सकते हैं स्ट्रिक्ट है, एंड दिस इज़ द दुबई. तो एक हीनियस क्राइम हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी का मर्डर किसी ने कर दिया, तो दुबई के अंदर क्या होगा, अगर कल्प्रिट प्रूव कर दिया गया है दैट द पर्सन स्टैंडिंग हियर इज द कल्प्रिट, ही इज़ गोइंग टू बी हैंग टू डेथ, उसे डायरेक्टली फांसी दे दी जाएगी एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी किल्ड. हियर हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू कि यहाँ पर इवन आफ्टर बीइंग प्रूवन गिल्टी दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू फेस एनी पेनल्टी रिगार्डिंग डेथ, उसे नहीं मारा जाएगा. इंस्टेड दे आर गिवन अ प्रोबेशन साइकिल, जिसके अंदर उन्हें मतलब उनका कुछ अलग से सेल होता है एंड दैट दे आर जस्ट पनिश्ड. ओके, यू हैव मर्डर्ड अ पर्सन, यू आर गेटिंग पनिश्ड. इट इज़ अ हीनियस क्राइम, बट अलग अलग कंट्री का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है लोगों को लेकर. ठीक है, तो ये उनका इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, कैसे जस्टिस को सर्व किया जाता है. ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है कि प्रैक्टिकली आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उन चीज़ों पे जज करना. ठीक है भाई, ये इनका पुलिस सिस्टम है, ये इनका पॉलिसी सिस्टम है, ये पॉलिसीज़ ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो है कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ हॉस्पिटल एंड एम्प्लॉयमेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये जुडिशरी सिस्टम है ऐसा है. तो ऐसी कुछ चीज़ें विच आर प्रैक्टिकली विजिबल एंड कैन बी प्रूवन इज़ वॉट इज़ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर वही चीज़ें आती हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकली सामने होता हुआ देख सकते हो और जो हिस्ट्री में प्रूवन हो. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड. ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है. क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स के बेसिस पे है. भाई पेपर में जो लिखा है वो सच है और हम पेपर के बेसिस पे आपको जज करेंगे. दिस अप्रोच फोकसेस प्राइमरीली ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि फैक्ट्स को स्टडी कर कर जज किया जाता है. इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The main objective of this approach is to understand how a country's political institutions are organized and how they operate. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है एक पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कंट्री के स्टडी करना और उसको ये पता लगाना कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, ठीक है, कि भाई उस कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या अपने सिटीजन्स की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्या उनकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्या एज अ नेशन वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो किस चीज़ को अपना एक प्रायोरिटी बेसिस मानकर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Initially, the scholar studies the merits and demerits of various countries' political institution by comparing them. Compare करके कुछ टॉपिक्स को लेकर कंपेयर करके उन्होंने मेरिट्स यानी कि फ़ायदे और नुकसान देखे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के, कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आता है तो फ़ायदे तो हो रहे हैं बट नुकसान भी हो रहे हैं. दिस अप्रोच प्लेस प्राइमरी एम्फेसिस ऑन रिटन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. और जब ऐसे मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखा गया तो कुछ प्राइमरी एम्फेसिस पे कुछ रूल्स, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिर्फ किसी एक नेशन के लिए नहीं है, लेकिन ये वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एज वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है. जैसे विमेंस राइट, रिगार्डिंग विमेंस राइट जो है अफ़गानिस्तान अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था ओवर द, मतलब कि वर्ल्ड वाइड हुआ था. अफ़गानिस्तान के अंदर लेडीज़ को जैसे ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो उनका बुरखा सिस्टम था, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे हुआ था जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने काफ़ी ज़्यादा विरोध दिखाया था. तो वहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड का जुडिशरी सिस्टम है जो सभी नेशंस पर अप्लाई होता है, उन्होंने कुछ रूल किया अफ़गानिस्तान के खिलाफ दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस टू वुमेन. तो ये कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं जो एज अ कंट्री, एज अ नेशन हर कंट्री पे अप्लाई होते हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको करनी पड़ेंगी, ठीक है, एज अ ह्यूमन राइट्स के लिए सबको करना पड़ेगा, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इट इन्वॉल्व्स द पावर ऑफ कंट्रीज पार्लियामेंट, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अब हर कंट्री के अंदर एक अलग ही रोल होता है उनके पॉलिटिकल लीडर्स का, ठीक है. हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर में भी शायद पीएम को राइट नाउ बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, मतलब कि अकेडमिकली पीएम को माना जाता है दैट उसके पास ज़्यादा पावर है, बट इन यूके प्रेसिडेंट हैज़ मोर पावर, ठीक है. और किसी और कंट्री में जैसे दुबई है, दुबई के अंदर द शेख्स, द पर्सन, द प्रिंस हैज़ द मोस्ट पावर. तो हर किसी का एक अलग होता है हिरार्की एंड ऑन विच बेसिस द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज constitutionalized. A key characteristics of this approach is that it facilitates a clear understanding of structure and organization of a political institution. अब क्योंकि हमें हिरार्की पता है कि भाई विच पर्सन हैज़ द टॉप पावर और किसके पास सबसे कम पावर है, तो यहाँ से हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके स्ट्रक्चर की और उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, अब इसकी लिमिटेशंस भी होती है. देखो, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर ही अप्लाई होता है. दिस अप्रोच रिमेन्स कन्फाइंड सोलिली टू द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो आपके पास फैक्ट्स के अकॉर्डिंग पेज पे दिखाया गया है आपको वही सच मानना पड़ेगा. आप पीछे से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. It does not accord sufficient importance to public behavior and social conditions. ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक बिहेवियर और सोशल कंडीशंस के लिए किया जा रहा है वो सफिशिएंट हमेशा नहीं होता है, ठीक है. Consequently, in modern times, other approaches have begun to be utilized alongside it. मॉडर्न टाइम्स के अंदर और भी अप्रोचेज़ ऐसी लाई गई हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो इनके साथ अप्लाई की गई है. अब हम सेकंड अप्रोच पे आते हैं, दैट इज़ योर सिस्टम अप्रोच, ठीक है. द सिस्टम्स अप्रोच इज़ अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये मॉडर्न एक मेथड है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द पॉलिटिक्स इज़ अंडरस्टूड एज अ सिस्टम. यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक सिस्टम माना जाता है, ठीक है. जैसे कंपनी के अंदर सिस्टम होता है कि टेंडर जो है सीईओ साइन करेगा,
साइन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट डायरेक्टर करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद टीम प्लान करेगी। आपने यहाँ पर क्या जान लिया, यहाँ पर आपने सिस्टम जान लिया कि अच्छा ठीक है, अप्रूव ये पर्सन करता है, प्लान ये पर्सन करता है और उस प्लान पे काम ये लोग कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर हिरार्की पता लग चुकी है और वहाँ से आप उसका सिस्टम अच्छे से समझ चुके हो। अ सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन वेरियस पार्ट्स वर्क टुगेदर कलेक्टिवली। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पर एक साथ मिलके एक सिस्टम के लिए काम किया जाता है। द पॉलिटिकल सिस्टम टू इज कॉन्स्टिट्यूशन बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर भी वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड किया जाता है। इट कंपेयर्स द पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन एज अ होल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं, इसे एक माना गया है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वेरियस टाइप ऑफ डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फ्लो फ्रॉम सोसाइटी इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत सारी तरह तरह की डिमांड आती है सोसाइटी से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और जिसके अंदर द पॉलिटिकल सिस्टम एंडेवर्स टू फुलफिल दीज डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजंस। पॉलिसीज और डिसीजंस के तहत वो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं उन डिमांड्स की। ठीक है, दस कॉन्टीन्यूस रिलेशनशिप इज मेंटेन बिटवीन द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक कॉन्टीन्यूड मतलब रिलेशनशिप बना के रखता है। देखो, दो पर्सन, एक कमरे में दो लोग हैं। ठीक है, दिस इज द सोसाइटी एंड दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। अब एक कमरे के अंदर दोनों के ही कान खराब है, तो कोई कुछ भी बोल ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फेड अप एंड दे आर जस्ट गोइंग टू लीव। एंड दूसरा होता है जब आपको पता है कि हाँ, हम कुछ बोलेंगे तो ये सुनेंगे, और जब इन्होंने सुन लिया तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, जब ये रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, चाहे इसका 10% ही क्यों ना हो एक्सेप्ट हो रहा हो, बाकी 90% रिजेक्ट कर दिया जाता है, बट 10% सुन लिया जाता है, दिस मेंटेन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द सोसाइटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, इसका एक अटेम्प्ट क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ होलिस्टिक एंटिटी बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को एक होलिस्टिक एंटिटी का यहाँ पर मतलब है दैट, हाँ, इसके अंदर इसे दर्शाया जाता है दैट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सोसाइटी से अलग नहीं है, लोगों में और पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, इट अकॉर्ड्स सिग्निफिकेंस नॉट ओनली टू इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इसके अकॉर्डिंग जब ये सिस्टम अप्रोच को यूज़ किया जाता है तो जो सिग्निफिकेंस है, जो एक मीनिंग दिया जाता है सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी। ठीक है, वो ऐसे दिखाते हैं दैट हाँ, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं। इस अप्रोच से द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिकम मोर कॉम्प्रीहेंसिव, और भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव हो गई, और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई। लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। Structural functionalism is also significant modern approach within comparative politics। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है? देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है दैट जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत सारे हिस्सों से बना है। ठीक है, और ये सभी हिस्से मिलकर एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम कर रहे हैं, यानी कि आप सोसाइटी हो और आपके लिए ये सब सिस्टम मिल के काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मीन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एवरी पॉलिटिकल सिस्टम पोजेसेस सर्टेन स्ट्रक्चर। हर पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड ईच स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और हर स्ट्रक्चर का एक काम है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में हर पार्ट का एक काम होता है, वैसे ही इनका मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम में हर एक स्ट्रक्चर का एक काम है कि भाई लेजिस्लेचर है तो वो लॉ बनाएगा, जुडिशरी है तो वो लॉ को अबाइड करेगा, और जो नहीं लॉ को अबाइड कर रहे हैं उनको पनिश करेगा। ठीक है, इनका ये मानना है। अ स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम। फ्रेमवर्क क्या है, कैसे वो काम कर रहा है। अ फंक्शन रेफर्स टू द रोल और टास्क परफॉर्म बाय एन इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर। फंक्शन का यहाँ पे मतलब है कि भाई वो इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर काम कर क्या रहे हैं।
जो है जस्टिस प्रोवाइड करती है, तो वो उसका काम हो गया कि जस्टिस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉज, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज, इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेट करेगा जस्टिस को। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी वर्क इन कॉन्सर्ट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इस अप्रोच का मानना है कि भाई ये अलग अलग वेरियस स्ट्रक्चर आते हैं, मिलकर एक पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते हैं और उसको स्मूथली चलाते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। दिस अप्रोच ऑल्सो पोजिट्स दैट वाइल स्ट्रक्चर्स मे वेरी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज देयर फंक्शंस कैन बी लार्जली सिमिलर। इनका मानना है कि हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग तो है, लेकिन काम सबका एक ही है, सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके फंक्शंस लार्जली सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल वन कंट्री माइट हैव एन इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट वाइल अनदर कंट्री मे हैव काउंसिल, येट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोथ कुड बी द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। एक पार्लियामेंट है, एक को पार्लियामेंट कहते हैं, दूसरे को काउंसिल कहते हैं। काम दोनों का क्या है? लॉ को इंचैटमेंट करना, यानी कि लॉ को अबाइड करना, ठीक है। Significance of this approach: if it offers a comprehensive and systematic method for understanding political system, comprehensive और एक systematic method provide कर रहा है आपको political system समझने के लिए। It facilitates the comparison of political system across different countries। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज़ का, उनको कंपेयर करना काफ़ी आसान बना देता है, ठीक है। कंक्लूजन में हम आएंगे, वेरियस अप्रोचेस ऑक्यूपाई अ पाइवोटल पोजीशन इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन अप्रोच एड्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। स्ट्रक्चर को समझेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसको समझेंगे। ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच कहती है कि पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको और आप पॉलिटिक को एज अ होलिस्टिक सिस्टम समझो, उसको एक ही चीज़ समझो, अलग अलग नहीं समझना है आपने। इसका कहना है कि सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम एक ही है, ठीक है, ये इसका कहना है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि भी पॉलिटिकल सिस्टम को ना आप एक लेंस के नज़रिए से देखो, जिसके अंदर हर एक स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। इन अलग अलग अप्रोचेस से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव और लूसिड हो गई है। इसका मतलब है आसान हो गई है, जिससे आप आसानी से कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि उसे जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज के टाइम पे पढ़ा जा सकता है, और साइंटिफिक भी हो गई है, बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर निकाली गई है। Consequently, these approaches hold particular significance in the field of political studies in the modern era. And this is how our lesson 1 ends. Chapter 1 यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके हर एक डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर आप देखेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, स्टडीइंग ओनली द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। एक पॉलिटिकल सिस्टम को, एक पॉलिटिक्स को समझना सिर्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन समझना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको और भी कुछ समझना पड़ता है। पॉलिटिक्स को, एक कंट्री की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वहाँ के माइंडसेट, बिलीव्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड देखें, वहाँ के लोगों का कैसा है, ठीक है। वहाँ के लोग क्या बिलीव करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी वैल्यूज़ की तरफ, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल कल्चर। ये सब चीज़ें मिलकर एक पॉलिटिकल कल्चर को बनाती हैं, ठीक है। दिस इनकम्पासेस एस्पेक्ट्स सच एज पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, देयर रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। जब आप इस सभी एस्पेक्ट को समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि लोग क्यों गवर्नमेंट में ट्रस्ट कर रहे हैं, वाई पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, देयर रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेज एंड देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स टू इंक्रीजेज, ठीक है। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एवरी कंट्री इज डिस्टिंक्ट। हर देश का एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। एज ट्रेडिशंस
बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरी सोसाइटी वेरी। हर किसी का, अच्छा एक और सवाल होता है कि भाई हर किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग क्यों है? सब मतलब कि सब जस्टिस ही तो दे रहे हैं, लॉ ही तो बना रहे हैं, सभी कंट्रीज़ का एक लॉ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो सॉरी, ये सवाल आ सकता है कि भाई हर एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम एक क्यों नहीं है, जिसका सबसे यहाँ पर जिसका आंसर यहाँ पर है कि हर किसी कंट्री की एक अलग माइंडसेट, बिलीव्स, वैल्यू और एटीट्यूड अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए हर किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है। समझ में आया? यस, the study of political culture helps us understand why and how countries political system functions। ठीक है, the political culture approach is a significant method for studying politics। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच जो है एक मेथड है हमारी पॉलिटिक्स को समझने का। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग द बिलीव्स, वैल्यूज, सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल इज एसेंशियल टू कॉम्प्रिहेंडिंग अ कंट्रीज पॉलिटिक्स। एक कंट्री की पॉलिटिक्स को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपके वहाँ के लोगों की बिलीफ और वैल्यू सिस्टम का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब अमेरिका के अंदर कोई पंडित, कोई क्या अमेरिका के अंदर योगीनाथ आदित्य जैसे सीएम अगर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, क्या वो वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो पाएंगे? क्या नहीं। वो लोग भगवान के अंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ों के अंदर हाँ वो मानते हैं, बट वो उस चीज़ को एक धर्म नहीं कंसीडर करते। ठीक है, उनके लिए भगवान अपनी जगह पे है और पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वहाँ का कोई, फॉर एग्जांपल चर्च का फादर ही कभी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम ये है कि भगवान को सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, भगवान जी सबसे ऊपर हैं, तो यहाँ के पंडित कहाँ नहीं है, आप ये देखिए। ठीक है, पॉलिटिक्स आप देख लो, आप आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स देख लो, कितने बड़े बड़े बाबाओं को बहुत बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाया गया है। तो हर किसी कंट्री के लोग किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, वहाँ से पॉलिटिकल सिस्टम अराइज होता है। बीजेपी को खासकर एक जो है उनके ऊपर ऐसे एक टैग लग चुका है दैट दीज आर द हिंदू कल्चर प्रमोटिंग पीपल। ठीक है, तो yes, this approach posits that a society's culture and people's mindset influence politics। पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए आज भी इंडिया के अंदर रिलीजन को एक बहुत बड़ा, आज के टाइम पे भी रिलीजन को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कितना ज़्यादा रूल कर रहे हैं लोगों के माइंडसेट को। इफ़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग विद इन अ कंट्री, डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देयर। जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर डेमोक्रेसी टिकेगी ही टिकेगी। कन्वर्सली, इफ देयर इज़ एपैथी, मिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, जब भी आपको पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भरोसा ना हो और उन पर शक हो among the people, the political system may be fragile। वहाँ का political system fragile होता है। This approach also maintains that political culture evolves gradually over time। और यहाँ से हमें पता लगता है कि political culture gradually evolve हो रहा है, टाइम के साथ साथ politics की definition बदलती जाएगी। हो सकता है आज politics का मतलब कुछ और है और आने वाले 10 साल के बाद कुछ politics का मतलब कुछ और ही हो। ठीक है, yes, factors such as education, communication, social change and economic development influence the political culture। Therefore, to understand politics, it is necessary to study not only institution but also culture of a society। पॉलिटिक्स को समझने के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन समझना काफ़ी नहीं है, बट कल्चर को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Let's move on। Armand and Verba's concept of political culture। Renowned scholar Gabriel Armand and Sidney Verba clearly elucidated the concept of political culture। उन्होंने एक पॉलिटिकल कल्चर, एक कॉमनली नॉन पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया है कि इन्होंने
आर्मंड और वर्बानी, यानी कि गैब्रियल आर्मंड एंड सिडनी वर्बानी, थ्रू देयर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ वेरियस नेशंस दे डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ पीपल्स एटीट्यूड इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अपनी स्टडी की मदद से उन्हें पता लगा कि कैसे लोगों का एटीट्यूड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स, सेंटिमेंट्स, आइडियाज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम दैट रिजाइड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। उनका मानना है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो लोगों की बिलीफ, सेंटिमेंट और आइडियाज का है जो पॉलिटिकल सिस्टम को बनाते हैं, और ये पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होता है। ठीक है, यस। ही आइडेंटिफाइड 3 मेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। उनका मानना है कि भाई मेन टाइप में सिर्फ 3 ही पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, जिनमें सबसे पहला है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। इन दिस टाइप ऑफ कल्चर पीपल पोजेस वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर होता है भाई इसके अंदर पॉलिटिक्स की नॉलेज ही बहुत कम होती है लोगों को। ठीक है, जो पीपल है वो अपने आप को गवर्नमेंट से डिटैच्ड रखते हैं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से दूर रखते हैं। ठीक है, वो उसकी नॉलेज ही नहीं रखना चाहते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ऐसे कल्चर को प्रीडोमिनेटली ऑब्जर्व किया जाता है ट्रेडिशनल और ट्राइबल सोसाइटीज़ में, जहाँ पर ट्रेडिशन और ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि हम मॉडर्न चीज़ों को अपने पास आने ही नहीं देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर का कहना है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम जानते हैं ये गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बस गवर्नमेंट ने जो कहा वो मान लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, तुमने कह दिया वो कह दिया, जाओ अब। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो अपने इलेक्शंस के अंदर अपने वोट्स को भी डालेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर इंगेज भी करेंगे और एक्टिविटीज़ के अंदर जो है इंटरेस्ट भी लेंगे कि हाँ अब गवर्नमेंट क्या नया बनाना चाहती है, क्या नया इवॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, और स्टडिंग दीज 3 टाइप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 टाइप के मेन पॉलिटिकल कल्चर होते हैं। ठीक है, सिविक कल्चर। सिविक कल्चर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलिटिकल कल्चर होता है दैट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन। ये बिल्कुल बीच में होता है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी होती हैं लेकिन सिविक पार्टिसिपेशन भी होता है। ठीक है, इन दिस कल्चर पीपल आर पॉलिटिकली अवेयर। लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं, जानते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, और सिविल कल्चर के अंदर जो लोग हैं उनकी नॉलेज और ड्यूटीज़ उनको पता होती है कि हाँ भी ठीक है ये हमारा हक है और ये हमारी ड्यूटी है, हमें बहुत अच्छे से पता है। अवेयर होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को लेकर एंड अपने राइट्स को लेकर। पीपल पे अटेंशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस व्हेन नेसेसरी। ज़रूरत पड़ने पर लोग अपने ओपिनियंस भी बताते हैं गवर्नमेंट ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। ठीक है, सिविक कल्चर रेंडर्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। सिविक कल्चर लोगों के पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट की वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबल रहता है। ठीक है, इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर टू फॉर्म अ बैलेंस्ड होल। और सिविक कल्चर जो है एक बैलेंस्ड होल है तीनों हमारे पॉलिटिकल कल्चर्स का, जिसके अंदर पैरोकियल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर तीनों के तीनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई सिविक कल्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेटिक नेशंस। और इसीलिए सिविक कल्चर को बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस दी जाती है डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर। ठीक है, अदर मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिकल कल्चर। अब और कौन कौन से मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं? सेवरल अदर स्कॉलर्स हैव आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब
आमंड और रेज ने तो बना दी, अब और भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं. दे हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दैट देयर एग्जिस्ट अ डीप सीटेड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज़ कल्चर एंड पॉलिटिक्स. उनका मानना है कि सोसाइटी के कल्चर के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत गहरा नाता है. ठीक है. सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल कल्चर. कुछ स्कॉलर्स का तो ये तक मानना है कि हिस्ट्री और ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से पॉलिटिकल कल्चर बना है. ठीक है. Other scholars have pointed out that education, media and communication channels, economic development also plays a crucial role in transforming political culture. दूसरों का मानना है कि एजुकेशन, मीडिया, ये सब आने से, एक्सपोजर, पब्लिक का एक्सपोजर होने से पॉलिटिकल कल्चर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है. क्यों ट्रांसफॉर्म होगा? क्योंकि नए आइडियाज़ आएंगे, लोगों को जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो उतना ज़्यादा इवॉल्व कर पाएंगे. कुछ स्कॉलर्स का तो ये तक मानना है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होता है, कि वहाँ का सोसाइटी कैसा है. ठीक है, वहाँ से वो इन्फ्लुएंस होगा. अब फॉर एग्जांपल कि हाँ ठीक है, अमेरिका में ये कुछ लॉज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अमेरिका का कोई लॉ हम यहाँ पे लगा दें कि दैट इफ़ अ वाइफ इज़ इंडिपेंडेंट and she is married to 3 people, then she is not allowed to have alimony. अगर ये आप लॉ इंडिया के अंदर लेके आएंगे तो दिस इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. जिस तरह से लोग गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, यू वॉन्ट इवन बिलीव इट. ठीक है. तो ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है. पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं वो हर एक डिसीजन हमारे कल्चर और सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है. अदरवाइज़ पूरे नेशन का एक ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना होता. ठीक है. सबका एक ही लॉ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेन एंड वुमेन है, गलत करेगा तो मार दो, मर्डर कर रहा है कोई तो उसको सज़ा दे दो, और कोई कुछ क्राइम कर रहा है तो उसको भी सज़ा दे दो. ठीक है. क्राइम तो हर जगह हो रहा है, बट सबको अलग अलग सज़ा क्यों मिल रही है? क्योंकि वहाँ का कल्चर और सोसाइटी नॉर्म्स अलग है. परिवार, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया इन्फ्लुएंस पीपल पॉलिटिकल व्यूज़. यहाँ से हमारे लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ कहाँ से आते हैं? यहाँ से, जब हमारी गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कुछ कर रही होती है. दिस पॉलिटिकल कल्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट से हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. When studying the concept of political culture, it is essential to understand both its significance and limitations. अब हम political culture की limitations और significance पढ़ेंगे. ठीक है. significance, यहाँ से हमें एक नया और comprehensive perspective मिलता है politics को समझने का. देखो politics को ना काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से आप देख सकते हैं. आप हिस्ट्री के बेसिस पे देख सकते हैं. ठीक है. यूरोपियन आइज से देख सकते हैं, आप ट्रेडिशनल आइज से देख सकते हैं, सोसाइटल आइज से देख सकते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़ के हिसाब से देख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको एक और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव मिल गया कि आप पॉलिटिक्स को किस तरीके से और देख सकते हैं. ये हमारी मदद करता है लोगों के एटीट्यूड को समझने में पॉलिटिक्स के द्वारा, कि भाई लोग पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं. इट ऑल्सो एड्स द कॉम्प्रिहेंडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज. लिमिटेशंस क्या हैं? Measuring political culture is difficult because it is intertwined with people, emotions and belief. इसको काउंट करना मुश्किल है क्योंकि ये लोगों के इमोशंस और बिलीफ से बना हुआ है. ठीक है. कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल होती हैं. ठीक है, हर एक कल्चर के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ओके, इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल व्हेन अ मैन with if a man has 2 wives. ठीक है. it is not socially acceptable in our country. acceptable नहीं है. बट अगर आप यही चीज़ें जो है किसी अरब कंट्रीज़ में देखोगे तो कहीं पर सोशली एक्सेप्टेबल होता है दैट अ पर्सन हैज़ 2 wives, दे हैव मैनी चिल्ड्रन. ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज़ है जो ये सब अलाउ करती हैं. तो एक कल्चर को आप कैसे काउंट करोगे?
ये मुश्किल है। एंड क्योंकि आप कल्चर को काउंट नहीं करते, इसीलिए आप पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम को भी नहीं उस बेसिस पे डिफाइन कर पाओगे। एट टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फुल्ली एक्सप्लेन पॉलिटिकल प्रॉब्लम सोलिली थ्रू द लेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट की वजह से ही आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कभी कभी नहीं बता पाते हो। जब प्रॉब्लम रिलीजन पर आ जाती है, जैसे अमेरिका के अंदर नहीं समझेंगे लोग कि यहाँ पर रिलीजन को लेकर इतना बड़ा दंगा क्यों पड़ा रहता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख क्यों करते रहते हैं, किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को अलग से हमारा एक और मुस्लिम नेशन बना के दो, किसी को हिंदू अलग से नेशन चाहिए, किसी को सनातन अलग से एक नेशन चाहिए, तो उनको नहीं समझ आएगा। और इसीलिए बहुत सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को एक लेंस के थ्रू आप नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट इट डज नॉट अकॉर्ड सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। कुछ ऐसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका ना तो इकोनॉमिक और ना ही सोशल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज़ एंटायरली बिकॉज ऑफ पीपल्स इमोशन, लोगों की इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं। कंक्लूजन, पॉलिटिकल कल्चर सर्व्स एज अ क्रूशियल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल कल्चर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर को समझने का, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का। इट इलुस्ट्रेट्स हाउ बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। आमिड वर्बा brought greater systematic order to the subject by elucidating the various type of political cultures. Civic culture is considered to be the paramount importance for the stability of democratic system. क्यों माना गया है civic culture? क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों हमारे political culture आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सभी इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन ये एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए जो पॉलिटिकल कल्चर है उसे वाइटल पर्सपेक्टिव से स्टडी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 2, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल कल्चर को डीप में पढ़ा। 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं और क्यों सिविक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। मेनली हमने चैप्टर 2 के अंदर यही पढ़ा है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, वेट अ सेकेंड। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ये चैप्टर 3, नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार हम फिर डिस्कस करते हैं। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म मीन्स Neo institutionalism means a way of looking at politics, economics and society that says rule, norms and institutions matter. जहाँ पर a society which is aware of its democratic values, of its political system and its political industrial system, जहाँ पर एक जो सोसाइटी है वो अवेयर होती है अपने इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जहाँ पर पीपल नो दैट रूल्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन मैटर, ठीक है, उसे हम नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली पॉलिटिकल स्टडीज फोकस्ड प्राइमरीली ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। पहले पॉलिटिकल स्टडीज सिर्फ हमारे 3 बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट पे ही सिर्फ ज़्यादा ध्यान देती थी, जो कि हमारा है लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Later scholars realized that institutions are not limited merely to rule and structure. Rule और structure से ही मतलब कि वो limited नहीं है, rather they are also influenced by society, history and human behavior. वहाँ से सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर से भी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म अटेम्प्ट्स to explain how institutions are formed, how they evolve and how they influence society and politics. Neo institutionalism जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि कैसे इंस्टीट्यूशन बनता है, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व करता है, टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आएंगे और वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। दिस पर्सपेक्टिव possesses that institutions are not merely a collection of rules. इंस्टीट्यूशन का मतलब एक रूल बुक नहीं है कि आपको रूल बुक पकड़ाती और ये सब फॉलो करना है। वो लोगों के बिहेवियर, डिसीजन और पॉलिटिक्स को जो है शेप करता है।
हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब हिस्टोरिकली हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता था? हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था कि हाँ ठीक है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ओके वी शुड ऐड दिस थिंग सो दैट people get benefited, okay maybe we should add this policy. This is what they are trying to tell. According to this perspective, studying a country's historical history is essential to understand its current political institution. करंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए एक कंट्री की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा इसका मानना है। किसका? नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म का। इट इज़ बिलीव दैट इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर टाइम, देयर करंट फॉर्म is the result of past events and decisions. What this is trying to say is today how we see politics is the result of the past events. यानी कि आज आप जिस तरीके से पॉलिटिक्स को देखते हो वो पास्ट इवेंट्स और डिसीजंस का एक नतीजा है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑल्सो सजेस्ट दैट वंस एन इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑल्टर। उनका मानना है कि एक बार इंस्टीट्यूशन रख दिया, समय के साथ बदल ज़रूर सकता है लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। द रीज़न फॉर दिस इज दैट इंस्टीट्यूशंस बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स हैबिट, ट्रेडिशन एंड पॉलिटिक्स। इनका मानना है कि जब एक बार हो जाए तो इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, उनकी ट्रेडिशन और पॉलिसीज़ में आने लग जाता है, उनकी हैबिट में आने लग जाता है। दिस पर्सपेक्टिव फर्दर आर्ग्यूज दैट देयर आर सर्टेन क्रिटिकल जंक्चर्स इन हिस्ट्री दैट डिटरमाइन द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉलिटिक्स। इनका मानना है कि हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी ट्रैजेक्टरीज हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स के फ्यूचर को डिफाइन किया गया है, जहाँ पर पॉलिटिक्स के फ्यूचर को देखा जा सकता है। देयरफॉर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म पेज special attention to historical circumstances and events in order to understand the political system. अब हम शुरू करते हैं रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब है जहाँ पर एक रेशनल चॉइस ली जाती है इंस्टीट्यूशन को लेकर, कि जहाँ पर एक पूरी होशो हवास में एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके वहाँ के डिसीजंस को बनाया जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर वुमेन को काफ़ी ज़्यादा वोलेट किया गया है ओवर द सेंचुरीज़। इस ह्यूमन बिहेवियर को समझकर बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन को फेवर करने वाले लॉज बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझा है। ओके, सो दीज पीपल आर ट्राइंग टू गेन पावर ओवर वुमेन। ओके, हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे जहाँ पर हम वुमेन को पावर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बाय कीपिंग देयर ओन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स इन माइंड। यहाँ पर इस परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ डिसीजन इंडिविजुअल्स लेते हैं जो सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए ही होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशेस रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स विद इन विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसे रूल और फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंदर इंडिविजुअल खुद के इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए प्रॉपर एक रूल को फॉलो कर सकता है। दिस पर्सपेक्टिव अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स वे द पॉलिटिकल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस। इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि जब भी कोई इंडिविजुअल खुद के लिए कोई डिसीजन लेता है तो वहाँ पर पोटेंशियल कॉस्ट और बेनिफिट लगता है। ठीक है, कंसिक्वेंटली द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सर्व शेप एंड गाइड टू ह्यूमन बिहेवियर, और ये शेप और गाइड करते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है जब आप वोट डालते हैं और किसी पॉलिटिकल लीडर को जिताते हैं। पार्लियामेंट्री रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स इन्फ्लुएंस पीपल्स डिसीजन एंड एक्शन। जब भी इलेक्टोरल सिस्टम से आपका कैसे डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वहाँ से एक नया पॉलिटिकल लीडर आया है, कुछ नया पार्लियामेंट्री रूल बनेगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा, वो लोगों को अफेक्ट करेगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर नया निकला है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको हर महीने आप जिंदा है इस चीज़ का प्रूफ आपको दे के आना पड़ रहा है, तो ये कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर निकालते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस अप्रोच से
An attempt is made to understand how individuals make their decisions, strive to achieve the objective within the framework of institution. इंस्टीट्यूशन के लॉ के अंदर रहते रहते वो कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल. सोसाइटल sociological institutionalism. Sociological institutionalism seeks to understand institutions within the context of society and culture. Sociological institutionalism के अंदर आप पॉलिटिक्स को और इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे सोसाइटी और कल्चर की नज़रों से कि भाई सोसाइटी का क्या कहना है, हमारा कल्चर क्या कहता है. इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स के ही नहीं बने होते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एक सोसाइटी के बिलीफ, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ से बना होता है. ठीक है. द कल्चर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस. जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं एक सोसाइटी के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके स्ट्रक्चर को और इंस्टीट्यूशंस को. दिस अप्रोच persists that individuals do not always bear the decisions solely on self interest. जो इंडिविजुअल है वो हमेशा सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए ही नहीं डिसीजंस लेते हैं, बल्कि वो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए भी लेते हैं. For example, in a given society, traditions, religious belief and social norms can influence the functioning of political institutions. That's true. Sociological institutionalism helps in understanding why institutions assume different forms across various societies. ये कहता है कि भी अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं. ठीक है, तो ये वो एडमोनिश करता है. Consequently, culture and society are accorded great significance with this perspective. यहाँ से हमारी सोसाइटी को और कल्चर को एक बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस मिलता है. कंक्लूजन. न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हैज़ प्रोवाइडेड अ ये भी एक वही पार्ट है, नया फ्रेमवर्क मिला है इंस्टीट्यूशन को समझने का. हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ. रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म फोकसेस ऑन इंटरेस्ट एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पर लोग एज एन इंडिविजुअल कैसे डिसीजंस लेते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं. सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फसाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. ठीक है. Through these various approaches, political institutions can be studied with greater depth and comprehensiveness. Therefore, these perspectives occupy a significant position in the study of modern politics. कुछ भी नया नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है. अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपके हर एक डाउट को पर्सनली सॉल्व किया जाएगा और उसको देखा जाएगा. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना. वहाँ से हमें जो है एक आपका सपोर्ट मिलेगा दैट यू आर विद अस, आपको समझ आया है. एंड ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इन्हीं और भी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं. तो वीडियो सीरीज़ का आपको बार बार टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक भी चैप्टर छूटा तो आपका नुकसान हो सकता है. एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से आएगा, इतनी गारंटी है. तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ के अपने एग्ज़ाम में पास हो सके. ठीक है. और अगर आप DU सोल रेगुलर NCEEB और किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलरली अपडेट्स डाले जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, खासकर सोल रेगुलर एंड NCEEB को लेकर. तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर एक अपडेट मिल जाएगा. दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.